Good morning, children. Once again, I am Monica Ratnu from Leal Public School. तो बच्चों होप अपने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखें और उसके बाद हम आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ रीसेंड करेंगे। ऑलरेडी हमने आपको पहले सेंड कर रखे हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये वर्क भी अपना कंप्लीट कर रखा है और जिन बच्चों ने नहीं कर रखा है वो अब अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ओके So student, yesterday we have completed our first chapter living and non-living thing. I hope you all understood it. कल हमने अपना living और non-living वाला chapter complete किया, आप सबको समझ में आया होगा. And I want to tell you one thing that keep reading this chapter again and again for your better understanding. अगर आपको इस लेसन को और अच्छे से समझना है तो आप इसको अपने आप से दोबारा रीड करना. Now I will start the very interesting topic of this chapter, which is word meaning. Page number 10. Yes. Number 1 is living things. मैंने आपको बताया था living things क्या होती है. Things which breathe, feel, grow, need food, move on their own and have babies are called living things. Things ऐसी चीजें जो breathe करती है मतलब सांस ले सकती हैं, feel कर सकती हैं, grow करती है मतलब बढ़ती हैं, need food जिन्हें food की आवश्यकता होती है, move on their own और अपने आप वो move कर सकती है, and have babies और जिनके बच्चे होते हैं, जिनके babies होते हैं, are called living things. वे क्या कहलाती हैं? Living things. Second is non-living things. Things which do not breathe, do not feel, do not grow, do not need food, do not move on their own, and do not have babies are called non-living things. ऐसे things जो breathe नहीं कर सकती, जो सांस नहीं ले सकती, डू नॉट फील जो फील नहीं करती, महसूस नहीं करती, डू नॉट ग्रो जो ग्रो नहीं करती, डू नॉट नीड फूड जिन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती, डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन और वो अपने आप से मूव नहीं कर सकती है, अपने आप से चल फिर नहीं सकती, एंड डू नॉट हैव बेबीज और जिनके बेबीज नहीं होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. वे क्या कहलाती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. थर्ड इज नेचुरल थिंग. नेचुरल थिंग्स which we get from nature are called natural things. जो चीजें हमें किससे मिलती है? नेचर से मिलती है, मतलब प्रकृति से मिलती है, are called natural things. And last one is man made things. Things made by man are called man made things. ऐसी things जो मानव के द्वारा बनाई गई है, जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, वो चीजें क्या कहलाती है? मैन मेड थिंग्स. और इनके बारे में एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और बताया था कि मैन मेड थिंग्स हमेशा क्या होती है? वो हमेशा नॉन लिविंग ही होगी. नेचुरल थिंग्स में भी लिविंग और नॉन लिविंग बोथ. नेचुरल थिंग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकती है, लेकिन जो मैन मेड थिंग होगी वो सिर्फ क्या होगी? वो नॉन लिविंग ही होगी. Okay, student, the further topic is also very interesting and you are going to enjoy it. Page number 11. Let's revise. We see living and non-living things around us. हम अपने चारों तरफ living और non-living things देखते हैं. All plants, animals and humans are living thing. सभी plants, सभी animals मतलब सभी जानवर and humans मतलब सभी मानव क्या है? Living things है. Ball, pen, chair and house are examples of non-living things. Non-living things के कुछ example यहाँ हमें दिए गए हैं, जैसे ball, pen, chair, house. They cannot move, they cannot breathe, they cannot grow, है ना? इसलिए ये क्या है? ये non-living things है. Sun, clouds and water are natural things. और sun है, clouds है, water है, ये क्या है? ये natural things है. Also ये क्या है? ये natural non-living things है. Table, sofa, fan and television are man-made things. इसके अलावा man-made things के भी examples आपको यहाँ दे रखे हैं, जैसे table, sofa, fan and television. ये सब क्या है? ये man-made things है, ये मानव के द्वारा बनाई गई चीजें हैं. Now, I hope the concept of living and non-living things, natural and man-made things are clear to you. Okay, children?
It is time of solve the book exercise. Our first exercise is tick the correct answer. जो भी करेक्ट आंसर है ना उस पे हमें क्या करना है, उस पे हमें टिक करना है. ओके, फर्स्ट इज दिस इज अ लिविंग थिंग. आपको नीचे 3 थिंग्स दे रखी है, इसमें से हमें लिविंग थिंग्स बतानी है कि लिविंग थिंग्स कौन सी है. बर्ड, कार, एरोप्लेन. तो आप बताओ, टेल मी व्हाट इज लिविंग थिंग. यस, बर्ड इज अ लिविंग थिंग. तो हम किस पे टिक करेंगे, बर्ड पे. ओके, सेकंड, दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग. आपको इनमें से बताना है कि इनमें से नॉन लिविंग थिंग कौन सी है. डॉग, प्लांट एंड बुक. यस, आंसर इज बुक. बुक इज अ नॉन लिविंग थिंग. नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड थिंग. इनमें से मैन मेड थिंग कौन सी है. माउंटेन, नो. सन, नो. कंप्यूटर, यस, कंप्यूटर इज अ मैन मेड थिंग. Clear? Now second exercise, fill in the blanks with correct words from the balloons. आपको देखो साइड में एक बलून दिया गया है. Yes, ये आपका हेल्प बॉक्स है. आपको ये वर्ड इन एक्सरसाइज में फिल करने. क्लियर? फर्स्ट, लिविंग थिंग्स डैश ऑन देयर ऑन. लिविंग थिंग्स अपने आप क्या करती है. अब आप हेल्प बॉक्स में देखो आपको कौन कौन से वर्ड दे रखे हैं. नॉन लिविंग, मूव, वाटर. फर्स्ट में कौन सा सुटेबल है. Yes, move. Living things move on their own. Second is dash things do not have babies. कौन सी थिंग्स के बेबीज नहीं होते हैं, किनके बच्चे नहीं होते हैं. तो आप देखो इसके अंदर हमने कौन से चीज देखी थी जिनमें बेबीज नहीं होते हैं. यस, आंसर इज नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव बेबीज. नॉन लिविंग थिंग्स के बेबीज नहीं होते. चिल्ड्रन, हियर वन थिंग आई टेल यू दैट एवरी न्यू सेंटेंस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. अब आप बोलोगे या जब फर्स्ट में हमने फिल किया तो एम क्या था, स्मॉल लेटर था. एंड सेकंड में जो हम फिल कर रहे हैं इसमें एन क्या है, ये कैपिटल लेटर है. तो यहाँ मैं आपको क्लियर करूं कि जब भी हम कोई न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ना, नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो हम हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे, वो कैपिटल लेटर से. दैट्स व्हाई एन इज कैपिटल. क्लियर? थर्ड इज डैश इज अ नेचुरल थिंग. तो नेचुरल थिंग क्या है. यस, वाटर. वाटर का डब्ल्यू भी क्या आएगा इसमें, कैपिटल. बिकॉज ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, वाटर इज अ नेचुरल थिंग. तो डब्ल्यू क्या लिखा हमने, कैपिटल. ओके चिल्ड्रन, नाउ थर्ड एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वन. जो करेक्ट स्टेटमेंट है उस पे हमें क्या करना है, उस पे हमें राइट टिक करना है. और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उस पे हमें रॉन्ग बनाना है, रॉन्ग का क्रॉस बनाना है. ओके, फर्स्ट, सन एंड मून आर मेड बाय मैन. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है. सन और मून मैन बनाता है. नो, सन एंड मून क्रिएटेड बाय गॉड. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो हमें क्या करना है यहाँ, क्रॉस. नाउ टर्न द पेज चिल्ड्रन. यस, second statement is natural things are not made by men. इसमें हमें बताया गया है कि जो नेचुरल थिंग्स होती है वो मैन के द्वारा नहीं बनाई जाती है. यस, इट इज राइट, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. नेचुरल थिंग्स मैन नहीं बनाता है. कौन बनाता है, नेचर बनाता है. थर्ड इज अ हॉर्स एंड काउ आर नॉन लिविंग थिंग्स. इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट. Yes, is it incorrect? Because horse and cow तो क्या है, living things है. और हमें क्या दिया है यहाँ पे, non living things. No, it's not non living thing. This is a horse and cow are living things. Clear? Now exercise 4, answer the following questions. Number 1, which one of these has babies? A cat or a head? इनमें से किसके बेबीज होते हैं. अ कैट मतलब कैट के बेबीज होते हैं, और अ हेड
हेड के बेबीज होते हैं? यस, इसका आंसर क्या होगा? अ कैट, बिकॉज कैट इज अ लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग हैव बेबीज. So answer is a cat. Number 2, name two natural things. Two natural things के हमें नेम लिखने हैं. तो natural things created by God. Number 1, sun, and number 2 is moon. Yes. Now next activity. Write L for living things and N for non-living things in the boxes. आपको जो थिंग्स दे रखी है, जो पिक्चर्स दे रखी है, इनके पास में एक एक बॉक्स बना कर के रखा है ना. इन बॉक्सेस में जो लिविंग थिंग्स है तो हमें एल लिखना है, और अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो हमें क्या लिखना है? एन लिखना है. क्लियर? तो नंबर 1 पिक्चर किसकी है हमारे पास में? लॉयन. यस, लॉयन इज अ लिविंग थिंग. तो इसमें हम क्या नोट करेंगे, क्या मेंशन करेंगे? एल. यस. सेकंड इज कंप्यूटर. कंप्यूटर इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? यस, कंप्यूटर इज अ नॉन लिविंग थिंग. तो इसमें हमें क्या मेंशन करना है? एन. यस, कैपिटल एन. नंबर 3 इज बटरफ्लाई. बटरफ्लाई इज अ लिविंग थिंग. इसमें हमने एल मेंशन किया है. नंबर 4 इज बस. बस इज अ नॉन लिविंग थिंग. तो इसमें हमें क्या मेंशन करना है? टेल मी. यस, एन. एंड नंबर 5 इज ट्री. ट्री इज अ लिविंग थिंग. ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग. यस, इसमें हमने मेंशन किया है एल. Now go ahead. Next exercise is fill in the missing letters and tick the natural things. इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें 2 काम करने हैं. एक तो हमें टिक भी करना है, और हमें नीचे जो एक्सरसाइज दे रखी है, नीचे जो वर्ड्स दे रखे हैं, मिसिंग लेटर्स दे रखे हैं, उनको हमें फिल भी करना है. तो नंबर 1 देखो आप. यस, नंबर 1 इज सन. तो पहले हम इसे फिल करेंगे. ओके, एस यू हमें ऑलरेडी दिया गया है, एंड एन. ओके. नंबर 2 इज हॉर्स. एच ऑलरेडी हमें दिया गया है. ओ आर एस ऑलरेडी हमें दिया गया है. ई हॉर्स. नंबर 3 इज शिप. एस हमें दिया गया है बुक में, हम मेंशन करेंगे एच, देन आई, एंड पी हमें दिया गया है. तो ये क्या हो गया? शिप. एंड लास्ट वन इज शीप. एस हमें दिया गया है, नेक्स्ट हम मेंशन करेंगे एच. ई हमें ऑलरेडी दिया गया है, और 1 ई हम इसमें मेंशन करेंगे. डबल ई हो गया, एंड लास्ट इज ई. तो ये क्या हो गया? शेप. अब हम इसमें टिक करेंगे. हमें इसमें नेचुरल थिंग्स पे टिक कर रहे हैं. तो आप बताओ इनमें से नेचुरल थिंग्स कौन सी है? यस, फर्स्ट सन इज अ नेचुरल थिंग. तो सन पे हम टिक करेंगे. हॉर्स इज ऑल्सो ए नेचुरल थिंग. ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल. No, ship is a non-living thing. It's not natural. It's man-made thing. Yes. And ship is also a natural thing. Clear? Now, next exercise, page number 13. Let's think and answer. आप सोचो और सोच के मुझे बताओ, इसका आंसर दीजिए. ओके? Who needs food? किसको फूड की नीड होती है? A girl or a chair? किस एक गर्ल को फूड की नीड होगी या चेयर को फूड की नीड होगी, एंड व्हाई? और उसे फूड की नीड क्यों होगी? क्लियर? तो हम इसका आंसर लिखेंगे अ गर्ल नीड्स फूड. किसको फूड की नीड होगी? गर्ल. ओके, अ गर्ल नीड्स फूड. गर्ल को फूड की नीड होगी बिकॉज गर्ल इज अ लिविंग थिंग. गर्ल क्या है? लिविंग थिंग है. गर्ल कैन ब्रीथ,
गर्ल कैन ईट, उसको भूख लगती है, वो खाना खाती है, गर्ल इज अ लिविंग थिंग, इसलिए गर्ल को फूड की नीड होगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी शुड टेक we should take care of all living things in our surroundings. हम अपने चारों तरफ बहुत सारी जो लिविंग थिंग्स देखते हैं, we should not be cruel to plants and animals. लेकिन हमें जो प्लांट्स और एनिमल्स हम देखते हैं उनके लिए क्रूअल नहीं होना चाहिए, उनके लिए निर्दयी नहीं होना चाहिए, उनके लिए हमेशा क्या रखना चाहिए, मन में दया रखनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए, प्यार रखना चाहिए। सो क्रॉस द पिक्चर शोइंग क्रुएलिटी, तो हमें उस पिक्चर पे क्रॉस करना है जो क्रूरलिटी दिखा रही है, मतलब जो यहाँ पे दिखा रही है कि हमें चीजों के साथ में हम निर्दयी हो रहे हैं, वो उन चीजों पे हमें क्रॉस करना है। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देखो, शो द पिक्चर। यस, इसमें ये क्या कर रहा है, एनिमल को क्या कर रहा है ये, यस, ये लड़का इसे क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, मार रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज नॉट राइट, है ना, तो इस पे हम क्या करेंगे, रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। सेकंड देखो, ये इसमें एक गर्ल क्या कर रही है, प्लग द फ्लावर, फ्लावर को तोड़ रही है, लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं है ना, बिकॉज प्लांट्स इज अ लिविंग थिंग, और लिविंग थिंग को जब हम तोड़ेंगे, प्लग करेंगे, तो उनको भी पेन होगा, इसलिए इट इज ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग। यस, थर्ड देखो, ये ट्री को कट कर रहा है इसके अंदर, है ना, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। यस, तो इस पे भी हम क्या करेंगे, रॉन्ग। एंड लास्ट देखो, वो अपने पपी को क्या कर रहा है, फीड करवा रहा है, खाना खिला रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसकी टेक केयर कर रहा है, तो ये क्या है, ये बहुत अच्छा काम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल राइट टिक करेंगे। एंड लास्ट वन एक्सरसाइज इज, लेट्स एनहेंस आवर लाइफ स्किल्स, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपनी देखभाल कैसे करते हैं, सर्कल द करेक्ट बबल, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना उस पर हमें सर्कल करना है, और जो इनकरेक्ट है उस पर हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। फर्स्ट इज, आई टेक अ बाथ डेली, मैं रोज नहाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ये तो गुड हैबिट है, तो इस पे हमें क्या करना है, सर्कल। क्लियर? वैसे हमें रोज नहाना चाहिए, अच्छी बात होती है ये, है ना, इट इज अ गुड हैबिट। सेकेंड इज, आई डू नॉट ब्रश माई टीथ डेली, मैं रोज ब्रश नहीं करता हूँ, नो, इट्स नॉट अ गुड हैबिट, हमें डेली ब्रश करना चाहिए, है ना, तभी तो हमारे टीथ क्या हो पाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे, वरना क्या होगा, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, इनमें कैविटीज होगी, इनमें जर्म्स होंगे हमारे टीथ में, और इनमें पेन भी होगा, इसलिए हमें डेली ब्रश करना चाहिए। तो ये क्या है, ये रॉन्ग है, इस पे हमें क्या करना है, क्रॉस। यस, इट्स नॉट राइट। एंड नंबर 3 इज, आई वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, मैं साफ सुथरे कपड़े पहनती हूँ, यस, इट इज ऑल्सो अ गुड हैबिट, हमें हमेशा नीट एंड क्लीन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए, है ना। So children, now I will show you a video that based on this chapter. So student, now we will meet in next meeting with second chapter. Till then, you read it on. Okay? Stay home, stay safe.